Thanks for inviting me. And the moment I entered BHU, I could feel the grandeur. I always had this view that BHU is a place once I should visit, but I have never imagined that it will be so grand and it will be so mesmerizing. So I am really honored, and I have been a student of Delhi University, and I used to feel that there is no place better than Delhi University, but I think after coming here, I have to change my opinion. So I must admit it was simply like I never expected such a beautiful place and such an enthusiastic crowd. And I just had an opportunity to meet some of your representatives. I was just trying to know about the culture here, the culture of teaching, education. And I think that it's a wonderful place, and it's a great honor to interact with all of you. So, starting with, I believe that most of you may have thought about going for civil services, and how many of you want to go for civil services? Good, good. And even if those who have not yet thought, I will always suggest give it a try. It's really worth it, especially in a country like India. I think there is no other profession that can give you such a satisfaction the way civil services is, and satisfaction for various reasons, not just a satisfaction from the perspective of your job, but otherwise also it is worth trying it. It gives you a sense of achievement, clearing this particular exam, and whether you go for civil services or not as a career, but if you look at the syllabus of the civil services, so if you look at the syllabus of civil services, I will definitely say कि एक बार तो सबको कम से कम उस तरीके से पढ़ना ज़रूर चाहिए। चाहे सिविल सर्विसेज का जो पढ़ाई है, फिर आप आगे किसी भी करियर में जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा उसका जो सिलेबस है, आप देश की हिस्ट्री, आप देश का कल्चर, आप देश का भूगोल, मतलब ऐसे कभी अर्थव्यवस्था, ऐसा कभी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली आपको एक बार सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और undoubtedly civil services is, this particular exam is known as, or it is seen as, one of the toughest exam. And the toughest exam, why it is a toughest exam? Because you all know that civil services is known as the steel frame of the country. So civil servants, they have acted as the steel frame of the country, and that is why, because ये जो काम है, आप कह सकते हैं इतना चुनौतीपूर्ण है, तो इसमें एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के ही लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी हिसाब से ये पूरा सिलेबस, ये पूरा एग्ज़ाम और इसकी प्रक्रिया है। मैं ये अपने पूरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जितना आपको ऐसे लगता है, जब तक हम उस पानी में पैर नहीं रखते तब तक हमको डर लगता है, लेकिन हम जब उसमें आ जाते हैं तो हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उतना मुश्किल नहीं है
जितना कि इसको बना दिया गया है। और मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में कि इसको इस तरीके से करना होता है, ये इस तरीके से मुश्किल है। ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से तो लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लेते हैं। और मेरा मतलब हमेशा से ये एक इंस्पिरेशन रहा है। विवेकानंद जी का एक कोट है जो मैं अक्सर हर जगह बोलती हूँ, और ये मुझे बहुत ताकत देता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जब तक हम हार नहीं मानते, जब तक हम उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वो कर ना पाए। ऐसा कहा जाता है ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आई विल ऑलवेज से कि यू ऑल हैव राइट टू सी द ड्रीम्स एंड make civil services as one of your future options, and I can say it's worth it. And clearing civil services is not as difficult as it is assumed to be, subject to the condition you understand what is the game, what is the strategy. Every exam has its own challenges, but it also has its own opportunities. So if you can understand rule of the game, things are not that difficult. The reason is लोग इतना ज़्यादा सिविल सर्विसेज अगर हम देखते हैं कि वी लिव इन अ इंफॉर्मेशन एज, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज़्यादा है। एवरी डे एवरी सेकेंड इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज़ इनफ फॉर एनी स्टूडेंट टू गेट कंफ्यूज्ड एंड टू गेट लॉस्ट ऑल्सो, और अल्टीमेटली टू फील डीमोटिवेटेड। तो अगर हम शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी को समझते हैं, अगर हम जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ को समझा जाए कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिविल सर्विसेज है, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझते ही नहीं है कि ये एग्ज़ाम किस लिए बनाया गया है। कई लोग सिविल सर्विसेज का जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें और एकेडमिक्स के प्रिपरेशन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एज यू ऑल नो, अल्टीमेटली इट इज़ अ पर्सनैलिटी एग्जामिनेशन। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या काम करना है और किस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा काम करना है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर और अपने व्यक्तित्व के ऊपर। हम अगर केवल बहुत बुकिश अप्रोच से पढ़ाई करते हैं तो सिविल सर्विसेज करना मुश्किल होता है। तो सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि एक विकासशील देश में, एक डेवलपिंग कंट्री में सिविल सर्वेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स की क्या क्या चुनौतियां हैं, और क्या मेरा जो व्यक्तित्व है उसके अनुरूप है या नहीं है, या मैं अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ढाल सकता हूँ या नहीं ढाल सकता हूँ। मैं यही कहूँगी कि नो वन इज़ बॉर्न टॉपर, कोई टॉपर होता नहीं है। आप लोगों ने शायद फेमिनिज्म पढ़ा है, आपने सिमोन डी ब्यूवो का नाम सुना है? सिमोन डी ब्यूवो का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन। इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो से दैट वन इज नॉट बॉर्न टॉपर, वन बिकम्स टॉपर।
और टॉपर बनना मतलब इतना मुश्किल नहीं है। एक जो भी कंपटीशन है, तो आप हर साल अराउंड 10 से 11 लाख लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। पर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरने के बाद ही थोड़े दिन बाद उनके अंदर ये एक तरीके का डर बैठ जाता है या उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो जो लोग एक्चुअली एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, वो लगभग 5 से 6 लाख लोग प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो फॉर्म भरने के बाद उस एग्ज़ाम के हॉल तक चले जाएं और वो एग्ज़ाम दे दें। और फाइनली जो कंपटीशन रहता है वो तो फिर प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट होता है, जो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो इशू यही है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको हम सक्सेसफुली कैसे करें। मेरा यही मानना है कि जब भी हम कोई चीज़ करें या अपने हाथ में किसी चुनौती को लें, तो वी शुड नॉट लीव एनीथिंग इन द मिडिल, और हमारे जो भी एफर्ट्स होने चाहिए दैट शुड रिजल्ट इनटू द कॉन्क्रीट, उसका अचीवमेंट होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सिविल सर्विसेज क्लियर क्यों नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि वो टाइम नहीं दे रहे, बल्कि इसलिए कि शायद उनको वो मार्गदर्शन नहीं है, शायद उनको ये सब पता नहीं होता है कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो इसलिए अगर आपको ये पता है, आपको इस बात का जानकारी या समझ है कि हमको क्या चीज़ पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको मार्क्स की स्टडी करनी है पॉलिटिकल साइंस में एज अ थिंकर, लेकिन मार्क्स को जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ेंगे तो उसका अप्रोच काफ़ी अलग होता है। जब आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो उसका अप्रोच काफ़ी अलग होता है। आप अगर देखिए, जैसे सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको काफ़ी बड़े उत्तर लिखने होते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज परीक्षा में बहुत ही लिमिटेड टाइम एंड स्पेस में आपको बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसका कारण ये है कि आपके दे वांट टू अंडरस्टैंड देयर कि आपके अंदर कितना ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। आपको सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं जाना है, आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई का तरीका सही नहीं होता है। तो चीज़ों को समझ करके पढ़ना, ये कमी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में दिखती है कि आप बस करने के लिए कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस में होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को आपने कभी भी साइंटिफिकली और प्रोफेशनली एनालाइज नहीं किया होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही ढंग है करने का या नहीं है। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों में अधिकांशतः आप जानते ही होंगे कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के 3 चरण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो मेंस का स्टेज होता है। क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो तो एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, वो आपकी सीरियसनेस को टेस्ट करता है, लेकिन आपकी बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो मेंस के लेवल पर ही टेस्ट होती है। आप देख सकते हैं कि मेंस के लेवल पर जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट हो जाता है। उसमें कई तरीके, अगर हम क्वेश्चंस का नेचर समझें तो प्रत्येक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में
फैक्ट्स भी होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आपसे ये डिमांड की जाएगी कि आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हों, आपके अंदर एक निर्णय निर्माण की क्षमता हो कि आप उस मुद्दे पर कोई एक पोजीशन ले पाएँ। तो सिविल सर्विसेज के जितने भी आप देखेंगे, किसी भी स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चंस हमेशा आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे होंगे। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। इंफॉर्मेशन इज नीडेड बट लॉट ऑफ स्किल्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग उन स्किल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो लोग भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में जाना चाहते हैं, आपको ये समझना होगा कि कौन से स्किल्स, फॉर एग्जांपल अगर मेंस के क्वेश्चंस हैं तो वो किस तरीके से क्या क्या मेरे कौन से स्किल को टेस्ट कर रहे हैं। आर दे टेस्टिंग माई कैपेसिटी टू इंटरप्रेट, आर दे टेस्टिंग माई एबिलिटी टू डीकंस्ट्रक्ट। जैसे एक वाक्य होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर हो जाती है कम्युनिकेशंस। तो अक्सर लोग क्वेश्चंस का ही मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो along with your information base, very important that you develop your skill base। मेरा ऐसा भी अनुभव रहा है कि जब बच्चे सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए मान लो आते हैं या दिल्ली भी आते हैं, तो हार्डली 10 से 20% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जिन्होंने यूपीएससी के क्लियर कट निर्देश को पढ़ा होता है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज परीक्षा में जा रहे हैं, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जो यूपीएससी के द्वारा एक निर्देश पत्र होता है, एक गैजेट होता है, जिसमें उस परीक्षा के बारे में होता है। मेंस में वो कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं, प्रीलिम्स में किन किन क्वालिटीज़ को वो देख रहे हैं, इंटरव्यू जिसे आप इंटरव्यू नहीं बल्कि पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा में आप उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। नेक्स्ट चीज़ हमेशा स्टूडेंट्स को रहती है कि एक वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे किया जाए, हाउ टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल। एंड आई विल से दैट कि ऑप्शनल का जब आप चुनाव करते हैं, आप जो भी चीज़ का चुनाव करें, आप बहुत इमोशनल होके चुनाव ना करें। आपको बहुत ज़्यादा रैशनल होके चुनाव करना है। आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसलिए नहीं लें कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मैटर करता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के लिए या एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑप्शनल है तो आपको देखना होगा कि क्या उस ऑप्शनल में समुचित मार्गदर्शन उपलब्ध है, क्या उस ऑप्शनल में इस तरीके से नोट्स अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, क्या उस ऑप्शनल में ऐसी व्यवस्था है कि क्लासेस के बाद जो नेसेसरी टेस्ट सीरीज़ है, आपका इवैल्यूएशन है, आपका मेंटरिंग है, क्या ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं उपलब्ध हैं। अच्छा, ओके। तो आई थिंक कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी to have a conversation with Mr. Vaibhav, who is from BHU and has been our student, and he is going to join you from Berlin. Right now they are in Berlin, so he is happy to join all of you. So let us see what Vaibhav has to tell to us.
सर अब आप जी In fact, BHU has given us many toppers, especially IIT. So we have lot many people who have successfully got very good ranks from BHU. I hope you all must be aware of those students. क्या हुआ?